minus 2 whole 2 by 3 is less or equal than x plus 1 by 3 is less than 3 plus 1 by 3. X. So see the question. 26 minus 2 whole 2 by 3x, sorry, minus 2 whole 2 by 3 is less or equal than x plus 1 by 3 is less than 3 plus 1 by 3, x belongs to R. So see the total solution. There go. Here are two in equation. So just make separate these two. The first one will be 2 3 ja 6 and 2 8 minus 8 by 3 is less or equal than x plus 1 by 3. This is the first. 2 3 ja 6 and 2 8 minus 8 by 3, and the second one is x plus 1 by 3 is less than 3 plus 1 by 3. Here are the inequation. Now in the left side, what is the LCM? LCM is 3. So just multiply by 3. Minus 8 is less or equal than 3 into x or plus 1. Because here if you are will multiply by 3, cancel out minus 8. Here 3x, here 3 multiply, cancel out, there is remaining 1. Here is also LCM 3. So multiply by 3, 3 into x, 3x plus 1 is less than 3 3 ja 9 and plus 1. क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 9 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल, that is 1. Now transpose to the left side, minus 3x, either minus 3x less or equal than 1 plus 8, minus 3x is less or equal than 9, x is minus x less or equal than 9 by 3, so minus x is less or equal than 3. That means x is greater or equal than minus 3, because here is negative x, so if you will just divide by negative, that will be x is greater or equal than minus 3. And the next part, the next one is 3x plus 1 is less than 10. 3x is less than 10 minus 1. 3x is less than 9. X is less than. यहाँ तक clear? Have you solved up to this step? अच्छा, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. Now see the solution set. Since it is a real number and it is given if the value of x is greater or minus 3, means here is a closed interval but less than 3, and here is open interval. So can I rub this one? See, the value of x is minus 3 is less or equal than x is less than 3 for every x belongs to R. ये सॉल्यूशन आप कहोगे, देखो माइनस 3 से इक्वल है या माइनस 3 से ग्रेटर है, बट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3 है. So the value will be solution set on the number line will be, suppose that this one is 0 minus, हाँ, this one is the representation of set. You will just write the s equal x such that this is the representation of this solution set. Because this is a real number na, and finite number will be there, so you can't write the counting number. ठीक है? So this is the method to write the solution set. Or the second method,
either you can write like this one, ठीक है, -3 either you write this like this one or like by the properties method. No, -3 is included, 3 is not included because here is the open interval, na? Clear? Hmm. So in this is right, left close, right open. Any doubt? हाँ, ये listen, real life में जो भी anyone is saying something? Anyone? No. इस बेटा ये तो पहले आपको बता चुका हूं ना कि फॉर जब फॉर लेस आर इक्वल क्लोज ब्रैकेट एंड फॉर ओनली लेस आर इक्वल ओपन इंटरवल ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ना। देखो यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, दिस मींस क्लोज इंटरवल, और हियर देयर इज नो इक्वल साइन, सो ओपन इंटरवल, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो this method is known as properties method, इसको properties method भी बोलते हैं to represent the solution set, और ये तो by interval method because you can't represent all the numbers, real numbers between the given number। अब ऐसा नहीं है कि -3 है तो -3 -2 -1 लिख दो और फिर 0 1 2 3, that is wrong because there are infinite, so you will just represent by properties method by assigning a properties by the single variable of the numbers lying between the interval। एक पर्टिकुलर वेरिएबल से उसको, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना x इज व्हाट, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज रियल नंबर, such that देखो x such that -3 is less or equal than x is less than 3 for every x belongs to R, and this is the complete solution set। अब यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि x is what, x is line between -3 to 3 where x belongs to R, x is a real number। So this is the representation of solution on the solution set of the real number, क्योंकि इस केवल फॉर रियल नंबर यू कैन फाइंड राइट द फाइनाइट नंबर, और इसी को जस्ट लाइक दिस इसको भी और क्या लिख सकते हैं, -3 एंड 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। नो, आप पूरी कहानी अभी फिर पूछ रहे हो आप। देखो अगर ये लेस देन साइन है, फिर से समझो, अगर लेस देन साइन है या ग्रेटर देन साइन है, अगर सिर्फ ये सिंगल है तो ये ओपन, ये स्मॉल ब्रैकेट बनेगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और जब इन दोनों के साथ लेस के साथ इक्वल लगेगा या ग्रेटर के साथ इक्वल लगेगा तो ये वाला ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट। बात समझ में आ गया? हाँ देखो -3 पे इक्वल इज लेस आर इक्वल लगा है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट है, और इधर इक्वल नहीं लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट। बात समझ में आया? हाँ, ये शुरू स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कैसे किसका कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे। जब इक्वल साइन होगा इन इक्वेशंस के साथ तभी क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, और अगर नहीं होगा स्मॉल ब्रैकेट यूज करोगे।
क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? और एनीवन? हाँ, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर टेस्ट, ओल्ड बुक और न्यू बुक? बोलो बेटा, ओल्ड बुक है या न्यू बुक है? क्वेश्चन नंबर बोलो। ये 5x+1, 5x+1/7। अच्छा, 5x+1/7 माइनस 4x/7 प्लस 2/5 is less or equal than 1 whole 3/5 plus 3x minus 1/7 x belongs to 5x plus 1/7 minus 4x plus 7 x/7 plus 2/5 is less than 3/5 plus 3x minus 1/7. I have written the correct question. So see here, there is a single inequation, so there is no need to separate, and you can't separate also because there is a single inequation. So first of all, इनको जहाँ तक may be simplified कर लो, उसके बाद से देखते हैं 5x+1/7 minus 4, और इसको ब्रैकेट में सिंप्लीफाई कर लो। 5 into x, 5x plus 7 into 2, 14 divided by 7 into 5, 35 is less or equal than 5 1 ja 5 and 3, 8/5 plus 3x minus 1/7. Now what is the LCM? बोलो बेटा, what is the LCM? 30. तो 35 पे जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5x+1 into 5, क्योंकि 7 5 या 35, और माइनस 4 5x+14, और 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इज लेस और इक्वल देन 5 7 जा 35 और 7 8 जा 56, ठीक है ना? 5 7 जा 35 और 8 7 जा 56, और प्लस 7 5 जा 35, तो 5 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 में ऐसे कर रहे हैं। अब देखो डिनोमिनेटर गायब हो गया। अब थोड़ा इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 5 into 5 25x plus 5 माइनस, जब मैं ये 5 into 4 20x, और ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस जाएगा, माइनस 14 into 4 is how much? 53। जब ये माइनस हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पहले माइनस लगा होगा, is less or equal than 56 plus 5 3 जा 15x minus 5। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x देखो 25x minus 28, this is equal to 5x, ठीक है? क्योंकि 25 में से 20 माइनस कर देंगे, 5x बचे minus 56 और plus 5 is equal to minus 51, is less or equal than 15x, और प्लस देखो यहां से भी 56 माइनस 5 51 प्लस का। Now we have get a simplified form of this linear equation. You may note down
अगर नोट कर लो ताकि इसके आगे हम रब करें। ओके, नाउ सही है। 5x 5x and 15x transpose to the left side minus 15x is less or equal than 51 and plus 51. So minus 51 will transpose to the right side plus 51 minus 15 plus 5 minus 10x is less or equal than 100. ठीक है, so x minus x is less or equal than 102 divided by 10. So this is equal to x is greater or equal than minus 10.2. बोलो सही है, यहाँ तक कंफर्म है। आई 10 से डिवाइड मतलब डेसिमल अप टू 1 डिजिट। Now the solution, and since x is real number, is for every x belongs to a real number. This is the solution. Now the state is 0, यहाँ पे 0 रखो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और 1, 2. Suppose that this is minus 10 point, this is minus 10 point. Now the question is, the value of x is greater or equal than minus 10.2. So here is what? Black ball. Here is black ball and the arrow is towards right direction. Why? Because the value is increasing up to right side. So this is the representation and this is the solution set. ठीक है? S equal x such that x is greater or equal than 10.2 for every x belongs to R. Clear? हाँ हाँ बेटा, करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो -10.2 से ग्रेटर किधर जाएंगे? राइट में ही, राइट साइड में। अब ये तो बाउंड्री दिया नहीं कि कहां तक जाना है, तो इनफाइनाइट तक ही जाएंगे क्योंकि माइनस -10 यहाँ पे, ये -10 है ना बेटा, ये -10.2 से ग्रेटर ही जाना है, तो लास्टली जो है डिवाइड तो क्या नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट के यहीं तक जाना है। सो यू हैव टू रीच अप टू इनफाइनाइट, तो लास्टली यहाँ पे एरो दिखा दोगे, यहाँ पे ब्लैक बॉल और फिर ये रिप्रेजेंटेशन अप टू इनफाइनाइट। once what is your question? -3 नहीं बेटा, केवल -1 -2 नहीं होगा, ये तो हमने नंबर, अरे ये नहीं, ये -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये तो एक डिवीजन दिखाया है ना, बट ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके आगे सभी नंबर है। ये यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा, ये केवल नंबर नहीं है, ये तो आप लिख सकते हो नो डाउट, लेकिन ये सॉल्यूशन में ये भी आएंगे, इसके अंदर के भी नंबर आएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये तो डिवीजन मार्क कर रहा है ना, ये कि 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन 5 डिवीजन, जस्ट रिप्रेजेंट्स द डिवीजन, बट इनके अंदर के डिविजन्स के अंदर जो नंबर है दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। डेसिमल में जो भी नंबर आएंगे, रेशनल में जो भी नंबर, सब आ जाएंगे।
और कोई दिक्कत? एनीवन? जिज्ञासा मिश्रा? बेटा एक एक करके सब पूछ लो, क्या दिक्कत है? ठीक है। चलो चलो, क्वेश्चन यही ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा अच्छा, देखो, इफ यू आर टेकिंग नेचुरल नंबर, जैसे मान लो वन नेचुरल नंबर, क्वेश्चन समझना। सपोज दैट यू आर टेकिंग वन नेचुरल नंबर, वन वन, तो वन के बाद सेकेंड नेचुरल नंबर इज टू। तो if there is a x natural number, x is a natural number, then what is the second natural number? X plus one. ठीक है, तो just let here कि let first natural number is x। ये क्वेश्चन नंबर 9 है चैप्टर टेस्ट का। तो then the other या नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट natural number is how what? X plus 1. Which is greater? Which is greater? X plus 1 or x? Definitely x plus 1 is greater. X plus 1 is greater, definitely. अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, कह रहा फाइंड थ्री। अच्छा, थ्री दे रहा है बेटा। थ्री स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन। एक और है, नेक्स्ट एंड थर्ड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस। एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2। आप जिसका भी माइक ओपन है प्लीज क्लोज योर माइक, क्योंकि आवाज उधर से रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा। हाँ, किसकी? ये प्रज्वल। प्रज्वल, ओपन, क्लोज योर माइक। हाँ, जवाब, हाँ, यस। So here there are three consecutive natural numbers x plus 1 and x plus 2. Or definitely x is the smallest and x plus 2 is the largest. Now the question is find three smallest consecutive natural numbers such that the difference between one third of the largest and one fifth of the smallest is at least 3। डिफरेंस बिटवीन वन थर्ड ऑफ द लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट का वन थर्ड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जेस्ट x प्लस 2 का कितना? वन थर्ड। ये वन थर्ड हो गया, वन थर्ड ऑफ x प्लस 2 जो लार्जेस्ट है, एंड वन फिफ्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट इज दिस वन अपॉन फिफ्थ। वन फिफ्थ मतलब फिफ्थ से डिवाइड, वन थर्ड मतलब थ्री से डिवाइड। तो लार्जेस्ट का वन थर्ड और स्मॉलेस्ट का वन फिफ्थ, इन दोनों का डिफरेंस एटलीस्ट थ्री है। एटलीस्ट का मतलब होता है बेटा मिनिमम थ्री, मैक्सिमम मे बी एनी वन। समझ में आ रहा है? कम से कम थ्री, थ्री से अधिक चाहे जितना। Are you understanding what is the meaning of at least? चलो बताओ।
at least 2 means what? और नहीं नहीं, तो तब तो गलत हो जाएगा बेटा। At least 2 means minimum 2, maximum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 and so on, जहां तक at least का मतलब होता है। At least का मतलब minimum that is required and after that maybe any number. Clear है? So here is the at least this one is either equal to 3 or greater than 3। बात समझ में आ गया? या तो 3 है या 3 से ऊपर कोई भी नंबर है। एटलीस्ट का मतलब ये होगा। तो here LCM of 3 and 5 is 15। So just this one will become x plus 2 multiply 5, क्योंकि 3 5 जा 15 minus x into 3, क्योंकि 5 3 जा 15 is less greater or equal than 15 3 जा 45। भाई 15 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 into 15 45। So just simplify 5 into x, 5x plus 5 to the 10 minus 3x is greater or equal than 45. 5x minus 3x, 2x plus 10 is greater or equal than 45. So 2x is greater or equal than 45 minus 10. So 2x is greater or equal than 35. 2x is greater or equal than 35. Note down students so that I can rub these three lines. Okay. Here 2x is greater or equal than 35, क्योंकि 45 में से 10 माइनस करोगे 35 आएगा। ठीक है, तो x is greater or equal than 35 divided by 2, x is greater or equal than 17.5। यही तो होगा। अब समझ लो, आपसे कह रहा है कि लीस्ट नेचुरल नंबर, तो जब नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 17.5 के इक्वल या 70.5 से ग्रेटर। तो 70.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो डेफिनेटली उसके आगे के नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो x इज व्हाट, एक तो 18 आ गया, एक 19 आएगा और एक 20 आएगा। These are these numbers. Okay. 18, 19 और 20। हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन में 3 पूछा है ना कि फाइंड 3 कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें साफ लिखा हुआ है फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूटिव, और 3 आपने सपोज भी किया था x x plus 1 x plus 2। ठीक है, हाँ बेटा, बुक एमएल अग्रवाल का आपका चलेगा एपीसी अंडरस्टैंडिंग पब्लिकेशन। लिसन, मैं आपको बुक का ये दिखा दे रहा हूँ, देखो ये वाली बुक है। ठीक है, एपीसी एमएल अग्रवाल। क्लियर? बुक आपको उल्टा ऐसे भी दिखा दे रहे, ये है एपीसी एमएल अग्रवाल की बुक है। ठीक है, इसकी न्यू एडिशन वही लेना क्योंकि पुरानी भी एडिशन होगी।
जिसमें पुराने में जीएसटी नहीं दे रखा है, नए वाले में जीएसटी आया हुआ है, जीएसटी में कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ है, तो इस बार की बुक में आप देख करके लेना। पिछले वाले बुक में जीएसटी में 18 क्वेश्चन है, अब इस बार जो नई बुक आई है उसमें हो सकता है हमने अभी दिस ईयर का नई बुक हमारे पास भी नहीं है फिलहाल, तो आप जीएसटी जिसमें होगा वही लेना, जब क्योंकि अभी शायद हमारे समझ से कि इस ईयर की बुक मार्केट में शायद अभी आई नहीं है। अगर आती तो पब्लिक सर मुझे जरूर इन्फॉर्म किए होते। ठीक है, फिर भी आप पता कर लेना बुक दुकानों पे। न्यू बुक ही लेना, ओल्ड बुक मत लेना। ओल्ड बुक तो चाहे जैसे भी अरेंज हो जाए वो कर लो, वही सफिशियंट है। ठीक है ना। खरीदना होगा, न्यू बुक खरीदना होगा तो बिल्कुल न्यू एडिशन है, क्योंकि दुकानों पे पुराने भी एडिशन रखे रहते हैं। सॉल्यूशन इज क्लियर। जिज्ञासा मिश्रा, जिज्ञासा मिश्रा, आर यू हियर? जिज्ञासा, आर यू हियर? शी इज नॉट हियर। मानसी, यस। जिज्ञासा मिश्रा, प्रज्वल पहले आप अपनी माइक बंद कर लो फिर बात करेंगे, ठीक है। अभी एक एक से। जिज्ञासा मिश्रा, अनम्यूट योरसेल्फ। नाउ आर यू लिस्टिंग मी? बेटा रिप्लाई करो, 1-2 मिनट का टाइम बचा है, जस्ट रिप्लाई यस। बट आई कैन, ओके, देन डोंट वरी। मानसी, आर यू लिस्टिंग में? चलो, just one questions for you and you will tell me. No one will reply in chat box. No one will reply, only you will hear the answer. ठीक है। मानसी, this is for you, question for you. X is less, greater or equal than 0. X is less or equal than -5. X belongs to R. Tell me what is the solution. Mansi, unmute yourself and just tell me how many, what will be the solution and how can you represent on the number line. बेटा दिस इज द क्वेश्चन, ये तो हम आपसे पूछे हैं, अब आप हमें हमसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? जस्ट टेल द आंसर। तो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, आप हमसे ही उल्टे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इज द आंसर? सोच समझ के जवाब देना मानसी। Okay, I don't know. You know, but you can't. You don't know how to answer. ठीक है ना? You know very well. आदिति सिंह, आदिति शुक्ला या आदिति सिंह, केवल आदिति नाम दिख रहा है, जो भी हो। If you can reply, then can reply me. चलो प्रज्वल, प्रज्वल, प्रज्वल कहाँ चले गए? विश्वेश, हाँ बोलो बेटा, रिप्लाई करो। विश्वेश, विश्वेश, who is replying? Who is replying? Yes. No. हाँ,
हाँ तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट? अगर मान लो सॉल्यूशन सेट आपको लिखना तो पड़ेगा ना, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आपको एस लिखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखोगे इसके आगे? नो 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 नो, ऐसा मत कर देना। देखो बेटा, अगर आपने कर्ली ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर ऐसे फाइ डाल दिया तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट मत डालना, केवल यू विल जस्ट रिप्रेजेंट बाय कर्ली को क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट, ये वाई। देखो पहले सुन लो, या तो ऐसे कहोगे या एस इक्वल फाइव, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि देयर विल बी नो सेट, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये इधर जाएगा राइट में और ये यहां से ऐसे आएगा। रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये जैसे मान लो ये -5 है, ये 0 है, तो 0 से ग्रेटर ये इधर जा रहा है, ठीक है, और -5 भी इधर जा रहा है, तो दोनों में नो कॉमन सॉल्यूशन, तो एस इज नल सेट। नाउ यू कैन आस्क मी। हाँ, नहीं नहीं, हाफ मून क्या मतलब, मैंने समझा नहीं। ये हाफ मून थोड़ी, इसको बोलते हैं फाई। ये फाई है बेटा, इसको फाई बोलते हैं, सर्कल को कट करते हैं। या तो फाई लिखोगे या करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ मत लिखना, जीरो भी रखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। करली ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल प्लेन रखना, दिस इज योर आंसर, ठीक है। मानसे, मानसे, मानसे श्रीवास्तव, आर यू क्लियर? हाँ, आंसर तुम्हें पता था, बस कैसे रिप्लाई करें ये। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टाइम इज ओवर, विल मीट यू मंडे इन द नेक्स्ट। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड बोथ द सेशन। दोनों सेशन एंजॉय किया आप लोगों ने? थैंक यू, थैंक यू।